Hello everyone, welcome to my channel. Hi, I am CA Rohit Sipad, All India ranker at all levels of CA exam. Today I am sharing with all of you this economic law case study index and the economic law case study compilation, which includes all the case studies issued by ICI, including the suggested answers, the mock test paper, student journal, and the case study digest. And if you need all this material along with other relevant material for the economic law, then do like this video and comment your email address so that I can share whole material on your email. So let me just tell you that why this economic law index is useful for you. So if you see the recent trend in the economic law exam, then you will find that ICI is repeating case studies in the economic law, which it has already issued before the exams. So like in the recent December 21 exam, almost three case studies were copy pasted from the case study digest or the other material. And for the July 21 also, even in the Jan 21 and the November 20 exams. So in all the recent attempts, the ICI is repeating the case studies, and in the exam sometimes it becomes difficult to remember that which case study has been repeated because ICI has released more than 150 plus case studies. So that become a difficulty. So this index will help you to find out that which case study has been repeated and from where it has been repeated, so that in the exam you have to do only the copy paste and you get easily get the 25 marks, full 25 marks in the that case study that has been repeated. So in this video, I'm going to tell you like how to use this economic law case study index in the exam. So let's start the video. Yeah, so this video is going to be in the Hindi. So those who are not comfortable in Hindi can watch my other video that I made on how to use this index in the English, and you can find the link of that video in the description box. So if you're not comfortable in Hindi, then you can watch that video in the English. So let's start. So इस इंडेक्स के अंदर मैंने जितने की भी केस स्टडी आईसीआई ने इशू करी है, जो भी पास्ट ईयर पेपर में है, एमटीपीज में है और केस स्टडी डाइजेस्ट में है, उन सब में जो भी क्वेश्चंस थे, तो उन सब क्वेश्चंस को मैंने अलग निकाल लिया था और उन सब क्वेश्चंस को मैंने ए टू जेड सॉर्ट कर दिया। पहले मैंने उनको एक्ट के अकॉर्डिंग सेपरेट किया और फिर उनको ए टू जेड सॉर्ट कर दिया। तो जैसे आप इसमें देख सकते हो कि जैसे ये कॉम्पिटिशन एक्ट चालू हो रहा है और कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर जितनी भी केस स्टडीज आईसीआई ने इशू की है और उनकी जो क्वेश्चंस है, तो उन सबको मैंने इधर कॉलम में डाल रखा है, जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम है, और उसके अंदर मैंने सभी को ए टू जेड सॉर्ट कर रखा है। तो अब आपको ये केस स्टडी इंडेक्स यूज कैसे करना है, ठीक है। तो जब भी आपको पेपर मिलेगा तो आपको पहले क्या करना है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो या आप लास्ट क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हो। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको जब 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा तो आपको पेपर लेना है और पेपर में जो एमसीक्यूज है उनको एक बार इग्नोर करना है फर्स्ट 15 मिनट्स में। आपको सीधा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आना है। आपको फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से एक्ट से है, ठीक है। अगर आपने जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कॉम्पिटिशन एक्ट से है या रेरा एक्ट से है, तो आपको उस कॉम्पिटिशन एक्ट के पेज पे जाना है, रेरा के पेज पे जाना है, आईपीसी के पेज पे जाना है। आपको उस पेज पे जाना है इस इंडेक्स के अंदर, और उस इंडेक्स में अब आपको वो क्वेश्चन सर्च करना है। अब आप सर्च कैसे करोगे, तो आपको उसका फर्स्ट वर्ड पढ़ना है। तो जैसे आप फर्स्ट वर्ड पढ़ोगे, और ये इंडेक्स मैंने सॉर्ट कर रखा है ए टू जेड, तो अगर वो क्वेश्चन चालू होता है अ पर्सन हु इज परचेजिंग गुड्स, तो आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा। और अगर वो क्वेश्चन चालू होता है जैसे ये यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज विद रेफरेंस टू द कॉम्पिटिशन एक्ट प्रोविजन, सो आपको एकदम वो लास्ट लास्ट में मिल जाएगा। तो आपको रिलेवेंट एक्ट वाले पेज पे जाना है और आपको सर्च करना है कि वो क्वेश्चन इस पेज में कहाँ पर है। और अगर वो क्वेश्चन आपको इस पेज में मिल जाता है तो आपको फिर ये रेफरेंस पे जाना है और आपको इस रेफरेंस से पता करना है कि वो केस स्टडी कहाँ से रिपीट हुई है। तो मोस्टली आईसीआई हर एग्जाम में एक केस स्टडी रिपीट कर रहा है, तो इस इंडेक्स से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो केस स्टडी कौन सी है जो रिपीटेड हुई है, और उस केस स्टडी को आपको कॉपी पेस्ट करना है। उस केस स्टडी के एमसीक्यू भी पूरे रिपीटेड होंगे और उसमें आप इजीली 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो रिसेंट दिसंबर 21 एग्जाम का पेपर था, तो अगर आप वो पेपर दे रहे होते तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है और कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। सो ये दिसंबर 21 का पेपर है जो मैंने आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये केस स्टडी इंडेक्स अगर आप दिसंबर 21 एग्जाम दे रहे होते तो आप वो किस तरह से इस केस स्टडी इंडेक्स को यूज़ करते। तो जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो आप केस स्टडी 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो और आप लास्ट जो केस स्टडी जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रेटजी ये रहती है कि मैं हमेशा लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूँ, भले ही इलेक्टिव हो या अदर कोई सब्जेक्ट भी हो। इलेक्टिव के अंदर ऐसा होता है कि कोई भी क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो बाकी के पेपर है जैसे एफआर है, एसएफएम है, ऑडिट है, लॉ है, तो इन सब पेपर के अंदर होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होता है। तो और जो इनिशियल 15 मिनट्स आपको टाइम मिलता है तो उसमें आपको डिसाइड करना होता है कि आपको वो कौन से 4 क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आप जो अगर 15 मिनट्स में अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको एनी हाउ अटेम्प्ट करना ही है। तो बेटर होगा कि आप लोग भी लास्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करें। तो मैं जैसे ही लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, तो लास्ट क्वेश्चन में मुझे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिखते हैं सबसे पहले। तो जैसे ये केस स्टडी 5th है, तो इलेक्टिव में जो इकोनॉमिक लॉ है उसके अंदर 5 केस स्टडी आती है और उसमें से आपको एनी 4 केस स्टडी सिलेक्ट करके अटेम्प्ट करनी होती है। इसके अंदर केस स्टडी 1 मैंडेटरी नहीं होती है। तो जो जैसे ही मैं केस स्टडी 5 पे आता हूँ तो मैं इस केस स्टडी को रीड नहीं करूँगा अभी, मैं इसके अंदर जो एमसीक्यू दे रखे हैं इन एमसीक्यूज को भी इग्नोर करूँगा
और मैं सीधा आऊँगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे जो चालू होता है 5.6 पे। तो जैसे ही मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे आता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर पढ़ते ही मुझे आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन आईबीसी में से आया है, क्योंकि कमिटी ऑफ क्रेडिटर केवल आईबीसी में होता है। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले अपना इकोनॉमिक लॉ का इंडेक्स खोलूंगा। इंडेक्स में फ्रंट पेज पे जाऊंगा। फ्रंट पेज पे मैं देखूंगा कि आईबीसी कौन से पेज पे है। तो आईबीसी यहाँ पर है 11th पेज पे। तो मैं सीधा 11th पेज पे जाता हूँ अब, और मैं अब मैच करता हूँ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन की वर्ड्स है, जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर, तो मैं इस इंडेक्स में मैच करूंगा क्योंकि जो ए टू जेड सॉर्टेड है। तो मेरे को यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे चालू हो रहा है आंसर द फॉलोइंग। तो इसके अंदर जाते जाते मुझे दिखता है कि यहाँ पर आ रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर। लेकिन ये क्योंकि मैंने अभी बनाया है और इसके अंदर मैंने जो दिसंबर 21 का पेपर है वो भी इंक्लूड कर दिया है, तो इसको अभी इग्नोर करते हैं। तो इसके अलावा मैं देखता हूँ तो ये वर्डिंग्स मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं अभी। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा, तो 1 का ए पार्ट पढ़ूंगा। तो इसमें लिखा हुआ है ऑल द 4 बैंक्स। तो अब मैं इसको मैच करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आके मैच करने की कोशिश करता हूँ, तो ऑल यहाँ पर दिखता है और ये भी दिसंबर 21 से ही उठाया हुआ है। तो जो दिसंबर 21 में जो बच्चे इंडेक्स लेके गए थे तो उसके अंदर ये पार्ट नहीं था, तो इसको भी अभी इग्नोर करते हैं। और अब मैं पढ़ता हूँ इसमें नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट बोलता है जेबी नेशनल बैंक। तो मैं वापस इंडेक्स में आऊँगा। अब मैं जे पे जाऊँगा, तो जे कॉलम पे जाऊँगा। तो जे पे मुझे दिखता है कि जेबी नेशनल बैंक यहाँ पर है, लेकिन अगेन दिस इज फ्रॉम द दिसंबर 21 सजेस्टेड आंसर, तो इसको भी अभी इग्नोर करना है। अब मैं पढ़ता हूँ जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो सी पार्ट है, द बैंक डिसाइडेड टू एनफोर्स द पर्सनल गारंटी। तो जैसे ही मैं पढ़ता हूँ अब मैं इसके बाद जाऊँगा टी पे। तो टी कहाँ पे चालू हो रहा है, तो टी मुझे मिलेगा नीचे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे दिखता है कि द बैंक डिसाइडेड टू एनफोर्स द पर्सनल गारंटी। तो यहाँ इस क्वेश्चन की वर्डिंग्स और मेरे जो केस स्टडी इंडेक्स है उसकी वर्डिंग्स मैच हो रही है। तो ये मैच हो रही है केस स्टडी डाइजेस्ट में केस स्टडी 13 से, और उसका भी क्वेश्चन नंबर 2 से। तो मैं क्या करूँगा कि फटाफट से अपनी केस स्टडी डाइजेस्ट में जाऊँगा। इसमें जो केस स्टडी नंबर 13 है मैं उस पर जाऊँगा और वहाँ से मैं ये आंसर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो अपन ने देखा कि जो केस स्टडी 5 थी, जो दिसंबर 21 में केस स्टडी 5 आई थी, उसमें से एक क्वेश्चन रिपीट था एक केस स्टडी का। और इस तरह मैं पूरी केस स्टडी को पढ़ूंगा और ये सब क्वेश्चन को मैच करने की कोशिश करूंगा अपने इंडेक्स में। और अगर वो उसमें मैच हो जाता है तो मैं उस केस स्टडी में जाऊंगा और चेक करूंगा कि कहीं पूरी केस स्टडी रिपीटेड है कि नहीं है। तो इस तरह मैं केस स्टडी 5 पढ़ूंगा, उसके बाद मैं 4 पढ़ूंगा, और उसके बाद मैं केस स्टडी 3 पढ़ूंगा, और उसके बाद मैं केस स्टडी 2 और केस स्टडी 1 पढ़ूंगा, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि कौन सी केस स्टडी रिपीट हुई है। तो अब जब मैंने एनालाइज किया पेपर तो मुझे पता चला कि केस स्टडी 2 रिपीट हुई है इस पेपर के अंदर। तो अब मैं केस स्टडी 2 पे आता हूँ। तो केस स्टडी 2 में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उस पर लिखा है एग्जामिन द फॉलोइंग विद रीजन बेस्ड ऑन अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ रेरा। अब जो रेरा एक्ट है तो इसमें लिखा हुआ है कि रेरा एक्ट से, तो मैं अपने इंडेक्स में आता हूँ। अपने इंडेक्स के मैं फर्स्ट पेज पे जाऊँगा। फर्स्ट पेज में देखूंगा कि रेरा कौन से पेज पे चालू होता है। तो रेरा इस पे लिखा है 7 पेज से रेरा स्टार्ट होता है। तो मैं फटाफट से 7 पेज पे जाके रेरा पे जाऊंगा, और अब मैं देखूंगा कि जो इसकी फर्स्ट वर्डिंग्स है जो है एग्जामिन द फॉलोइंग। तो मैं अपने इंडेक्स में सर्च करूंगा एग्जामिन द फॉलोइंग कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एग्जामिन द फॉलोइंग अगेन इसी में ही आ रहा है जो है दिसंबर 21 का अटेम्प्ट। तो इसको अभी मैं इग्नोर करता हूँ क्योंकि ये दिसंबर वाले इंडेक्स में नहीं था। और अब मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखा है यहाँ पे वेदर द ट्रांसफर ऑफ राइट्स। तो वेदर पे जाता हूँ तो वेदर मेरे को पता है कि वो नीचे ही आएगा, तो मैं नीचे आता हूँ रेरा वाले इंडेक्स के। तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि क्वेश्चंस के वर्डिंग है वेदर द ट्रांसफर, और अब मैं इसमें सर्च करता हूँ कि वेदर द ट्रांसफर कहाँ पर लिखा है। तो जब मैं यहाँ देखता हूँ तो मुझे दिखता है वेदर द ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज इन द प्रोजेक्ट निर्मल आवास, और यहाँ पर भी सेम वर्डिंग्स लिखी हुई है वेदर द ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज इन द निर्मल आवास। तो मुझे लगता है कि ये केस स्टडी अब पूरी रिपीट हुई है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं फटाफट से यहाँ रेफरेंस पढ़ूंगा। तो रेफरेंस लिखा है कि केस स्टडी डाइजेस्ट में केस स्टडी 6 का क्वेश्चन 6 है ये। तो मैं फिर केस स्टडी डाइजेस्ट में आता हूँ। ये केस स्टडी डाइजेस्ट है, और केस स्टडी डाइजेस्ट में मैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 पे केस स्टडी नंबर 6 पे जाता हूँ। तो केस स्टडी 6 पे आऊँगा मैं पहले। तो थोड़ा फास्ट फास्ट चलते हैं केस स्टडी 6 पे। तो ये केस स्टडी 5 हो गई, अब आती है केस स्टडी 6। तो अब मैं केस स्टडी 6 से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे जाता हूँ, और अब मैं केस स्टडी 6 को और जो पेपर में आई केस स्टडी उसको मैच करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है वेदर द ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज निर्मल आवास, और अब केस स्टडी के अंदर भी लिखा है कि वेदर द ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज इन निर्मल आवास। तो ये क्वेश्चन मैच हो रहा है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ता हूँ केस स्टडी का। तो इसमें लिखा है वेदर जेएस ईडी इज अलाउड टू री अलोकेट, और इसके अंदर पढ़ता हूँ मैं तो इधर भी लिखा है वेदर जेएस ईडी इज अलाउड टू री अलोकेट। तो मुझे पता चलता है कि ये केस स्टडी पूरी की पूरी रिपीट हुई है। अब मैं इसके बाकी क्वेश्चन भी देख सकता हूँ। तो मुझे दिखेगा यहाँ पर कि जितने भी क्वेश्चन है वेदर द एप्लीकेशन मूव्ड बाय जेएस ईडी, तो वो भी यहाँ पर मुझे मैच होता हुआ दिखता है। और जो लास्ट क्वेश्चन है सिंस मिस्टर श्रीधर,
तो वो भी मैं इसके अंदर सर्च करूंगा और यहाँ पर अगर वो क्वेश्चन होगा तो मुझे मिल जाएगा। और अब इसके जो एमसीक्यूज है, तो अगर केस स्टडी रिपीट होती है तो उसके एमसीक्यूज भी रिपीट होते हैं। तो जैसे इसके अंदर ये एमसीक्यू विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड अल्टरनेटिव, तो मैं इसके अंदर देखता हूँ और इसके अंदर भी मुझे दिखता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन एमसीक्यू भी इसकी के अंदर है। तो पूरी की पूरी केस स्टडी और एमसीक्यू इसमें रिपीट हुए हैं। और मुझे ये जो चेकिंग करनी है, ये मुझे जो इनिशियल 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है उसी के अंदर मुझे चेक करना है कि कौन सी केस स्टडी रिपीट हुई है और कौन सी केस स्टडी रिपीट नहीं हुई है। तो आप इस इकोनॉमिक लॉ केस स्टडी इंडेक्स से प्रैक्टिस करो और आप भी ट्राई करो कि आप जितनी भी केस स्टडी है उन सबको पढ़ पाओ और चेक कर पाओ कि कौन सी केस स्टडी रिपीट हुई है। क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि कौन सी केस स्टडी रिपीट हुई है और उसके एमसीक्यू भी फिर रिपीट होंगे, तो उस केस स्टडी के अंदर आप इजीली 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अगर किसी केस स्टडी के अंदर ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है और पूरी केस स्टडी रिपीट नहीं हुई है, तो वो क्वेश्चन भी आप सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और जो आईसीआई ने 150 और 160 प्लस केस स्टडीज रिलीज की है, तो आपको सब केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आप ये इंडेक्स कैरी कर सकते हो। और मैं एडवाइस करता हूँ कि आप एटलीस्ट 20 से 25 केस स्टडी खुद सॉल्व करके जाओ, ताकि जो नई केस स्टडीज आई है तो आपको आइडिया रहे कि उन केस स्टडीज का आंसर कैसे ढूंढना है और उनका आंसर कैसे लिखना है। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।